Hello everybody, कैसे हैं आप? Today we are back with the review of one of my favorite shows ever. जी हाँ, Coffee with Karan season 8 शुरू हो गया है and season 8 episode 1 में none other than Rocky Randhawa आए थे and alongside Ranveer Singh was his wife Deepika Padukone. So what did this much beloved couple talk about? First joint interview after the marriage? Let's find out. लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? You need to get your coffee. What else? मेरी पूछो तो एपिसोड 1 की इससे बेटर शुरुआत हो नहीं सकती थी. जैसे कि करण ने कहा, last season left a lot to be desired. The coffee wasn't sizzling, it was ice cold. And if you're not a fan of iced coffee, then you had a lot of trouble digesting that season. Now, मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इस एपिसोड में विंटेज कॉफी विद करण वाइब्स मिली थी, क्योंकि ये एपिसोड ना कैरी था ना इमेच्योर. दिस एपिसोड वाज मैच्योर, बहुत इमोशनल भी था. नॉनसेंसिकल बातें की नहीं इन लोगों ने. But because Karan Johar थे, Ranveer Singh थे, you know there was gonna be a lot of fun. And Deepika added the much needed class. Coffee with Karan hai, so you know I'm gonna talk about their outfits, guys. Karan Johar kind of disappointed me. It was a boring black suit he was wearing. कोई चमक धमक नहीं थी. This is why मैं चमकीली बन के आई हूँ आज. Karan Johar, you don't have the sparkles this season, but I got them in spades. लेकिन मेरी छोड़ो, रणवीर सिंह एंड दीपिका पाडुकोण की बात करें क्या स्मोकिंग हॉट जोड़ी है इनकी. Both of them were wearing an all black ensemble. Both of them were looking sexy and groomed to the nines. Deepika ki smoky eyes, that luscious voluminous waves, that killer body, that bustier. Damn, that girl has legs for days. And uske upar those stilettos. And then Ranveer Singh ka kya kehna? Ranveer Singh ka bhi over the top theatrical attire nahi tha. He was wearing sexy black satin, groomed hair, groomed facial hair. Damn, this boy was looking good. And unke samne Karan Johar फीका पड़ गया था. Like literally. But you guys, better than their fashion was their presence. I loved कि वो एक ही नुक्कड़ में बैठे थे on the sofa, like together. I love that in the entire episode, Deepika ने अपना हाथ उसके टांग पे रखा हुआ था. She was leaning into him. And Ranveer Singh, damn, this guy is smitten. पूरे episode में he was kissing her shoulder. Oh my God. I loved it. I loved it. I loved it. And जैसे कि करण ने कहा, उनकी लाइफ में वो थर्ड व्हीलर है. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थर्ड व्हीलर बन गई हूँ उनको देखते देखते. I wanted to get on that couch with them. So guys, जैसे कि मैंने पहले कहा, the मिर्च मसाला मौज मस्ती शायद कम थी इस एपिसोड में, but it was all about रणवीर एंड दीपिका. हमें उनके लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सुनने को मिला है. We even got a glimpse of their wedding. Yes, उनकी wedding कुछ साल पहले हो चुकी है, 5 years to be exact, लेकिन we don't know the ins and outs of it. यहाँ पे उन्होंने अपनी fans को नाराज नहीं किया है because this was their first joint interview since the wedding. They brought us clips of their wedding. क्या खूबसूरत जोड़ी है ये, क्या खूबसूरत वेडिंग थी. आई लव कि उन्होंने साउथ कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया, पंजाबी कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया. आई लव कि रणवीर ने उसकी ट्रेडिशंस अपनाई हैं एंड दीपिका ने उसकी ट्रेडिशंस अपनाई हैं. It was beautiful. And obviously जो लोकल था, जो डेस्टिनेशन थी, वो तो थी खूबसूरत, but उनकी खुशी, उनकी smile, the tears, it was so beautiful. Fairy tale लग रहा था सब कुछ. And the best part was, उनके fathers ने क्या कहा है उनके बारे में. रणवीर सिंह के father ने तो कहा कि this guy dreamed of marrying her. And then Deepika Padukone's father said, Ranveer is totally unlike them. वो boring, typical family है and Ranveer उनकी life में आके spice डाल रहा है. It was so sweet. लेकिन उससे भी ज्यादा sweet पता क्या था? It was Deepika saying कि she feels complete. अब इससे ज्यादा वो क्या ही कहेगी. And then even sweeter than that was Karan Johar का reaction. मुझे वो बहुत ही ज्यादा emotional moment लगा था. Genuine feelings नजर आ रही थी करण की. मुझे करण जौहर हमेशा empathetic लगा है.
ही हैज अ हाई इमोशनल क्वोशंट, लेकिन सच मानो तो रणवीर सिंह का भी इमोशनल क्वोशंट बहुत ही ज्यादा हाई है एंड दीपिका का भी है. एंड दिस एपिसोड वाज हाई ऑन द फील्स गाइस. करण जौहर का कहना दैट ही मिसेस दैट कंपेनियन, उसको भी पार्टनर चाहिए, उसको उनका प्यार देख के लगा है कि ही इज मिसिंग समथिंग, दैट वाज सो टचिंग. एंड मुझे लग रहा था उनका पूरा वाइब देख के कि इवन दो आई हैव अ पार्टनर, आई एम मैरिड, मुझे भी कुछ मिसिंग लग रहा था. आई वाज लाइक डैम, क्या स्मिटन है ये दोनों एक दूसरे की तरफ, मुझे भी वो चाहिए, मुझे वापस से वो चाहिए अपनी मैरिज में. सो आई वाज रियली हैप्पीली वाचिंग एवरीथिंग. लेकिन वेडिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था उनका मिलना, how they actually got together. Variations तो हमने सुनी ही हैं that they got together on the sets of Ramleela. But the best part was Ranveer Singh's storytelling. He said कि वो एक सादगी की मूरत थी. White chicken curry उसने डाला हुआ था. The wind was blowing into her hair and she looked magnificent. And the best part was कि वो कहता कि they were having crabs and एक crab का piece अटक गया था उसके दांतों में. And he was like, hey, you got something in your teeth. And she was like, so then do something about it. And he literally went into her mouth and took that crab out. I mean, come on guys, that's pretty cute. Ranveer Singh wears his heart on the sleeve, and इस episode में भी वो दिखा है. The way he was looking at his wife, the way वो उसकी बातें सुनता है, the way he talks about her, कि this guy is madly in love. And love तो है, लेकिन self confidence भी इस बंदे में बहुत है. He has always said कि I knew कि I was it for her, कि मैं ही हूँ इसके लिए, and यही है मेरे लिए. ऐसा कॉन्फिडेंस सबको चाहिए. लेकिन व्हाट, दीपिका का भी कहना बहुत इंटरेस्टिंग था. शी टॉक्ड अबाउट कि उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी. शी केम आउट ऑफ टू tumultuous relationships and उसको बस फन करना था. लेकिन ये बंदा उसकी लाइफ में आया और उसके आगे उसको कुछ दिखा ही नहीं. They weren't officially committed to each other, लेकिन उसको पता था in the back of her mind that Ranveer Singh ही है मेरे लिए. Who can blame the girl, man? अगर रणवीर सिंह जैसा लवर आपको मिल जाए तो आपको और क्या ही चाहिए लाइफ में. द फनीएस्ट थिंग वाज कि उन्होंने कहा कि पूरे रामलीला के सेट को पता था कि इनके बीच में कुछ है. दे वर टुगेदर 24/7 एंड उन्होंने अंग लगा दे का किस्सा सुनाया था. गाइस, अंग लगा दे इतना सेक्सी नंबर है. एंड उसके जो किसिंग सीन था उस सॉन्ग के अंदर, दे वर सो इनटू ईच अदर कि जब गाने में वो ब्रेक आती है थ्रू द विंडो, दे डिडंट इवन रियलाइज कि एक ब्रेक आई है एंड दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन इन देयर लिटिल अ किस सेशन. तो उनकी वेडिंग के ऊपर बात हुई है, फर्स्ट मीटिंग के ऊपर बात हुई है, हाउ ही मेट द पेरेंट्स उसके ऊपर भी बात हुई है, प्रपोजल के ऊपर भी बात हुई है. रणवीर एंड दीपिका आर नोटोरियसली प्राइवेट. वो ज्यादा अपने ऊपर इतनी बातें नहीं करते हैं, खासकर दीपिका. तो इट वाज रियली नाइस टू सी कि रणवीर के साथ वो एक सेफ स्पेस में है. शी टॉक्स अबाउट हिम, शी टॉक्स अबाउट देयर लव एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. रणवीर ने बताया कि it took years for him to convince Deepika's mother कि मैं सही बंदा हूँ इसके लिए. उन्होंने ये भी स्टोरी सुनाई कि जहाँ उनका प्रपोजल दीपिका ने सबको बता दिया था and her mom was like, what the hell are you talking about? इससे शादी होनी है तेरी. And it was really fun कि वो एक कमरे में बंद था लेकिन सब बातें सुन रहा था. तो ये tidbits हमें कहाँ पता चलनी थी. And this is why ये जो एपिसोड भी था कॉफी विद करण का, it seemed like a different show. यहाँ पे जो frivolous बातें होती हैं गेस्ट को देके, like who is seeing who is doing what, ये जो rat race की भी बातें होती हैं, इतनी नहीं हुई थी इस शो में, because this show was a dedication to Ranveer and Deepika. That's what I felt. अगर आप उनके फैंस हैं, आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आप उनके फैंस नहीं हैं, I hope you got to see something in them that made you like them. And अगर अब भी आपको इन दोनों का पसंद नहीं आया कुछ भी, then क्या ही कहना आपका. कुछ नहीं अच्छा लगेगा आपको कभी भी इनके बारे में फिर तो. In this world of glitz and glamour, हमको भी लगता है कि relationships fake होती हैं, friendships fake होती हैं. लेकिन करण का जो उनकी तरफ emotional equation है, वो साफ दिख रहा था. रणवीर and दीपिका का तो emotional equation है, and it made for a wholesome episode.
एंड जैसे दीपिका ने कहा, इफ यू फाइंड द राइट पर्सन इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज वर्थ इट। मैरिज एक खेल नहीं है। एवरी डे इज नॉट फेरी टेल्स। एवरी डे रोजेस एंड फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स भी नहीं आपको मिलने। इट्स अ स्ट्रगल, इट टेक्स वर्क। एंड अगर आपको पता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप वो वर्क डालेंगे शादी में, रिलेशनशिप में, एक दूसरे में। एंड जहां तक हम मैरिज वर्क की बात कर रहे हैं, करण ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रणवीर सिंह रीसेंट स्ट्रगल्स, क्योंकि अगर आप रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, रणवीर सिंह का इतना अच्छा नहीं है। 83 के ऊपर बात की थी एंड रणवीर ने कहा था कि उसका रिलीज गलत टाइम पे हुआ था। बॉक्स ऑफिस अक्लेम नहीं मिली थी उसको उस मूवी के लिए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हुआ था। देन ही टॉक्ड अबाउट जयेश भाई जोरदार, एंड उसने एडमिट किया है कि वो मूवी ओटीटी के लिए बनी थी। इट वाज़न्ट सपोज्ड टू बी रिलीज्ड एंड यू नो व्हाट, लोगों को वो मूवी भाई भी नहीं थी। सेम विद सर्कस, इट वाज काइंड ऑफ फनी कि उसने सर्कस के लिए लाइक रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली। रणवीर said that he had very little input, very little to do on the movie. I felt like he was throwing Rohit Shetty under the bus a little bit. I like कि करण जौहर ने उसको पूछा कि जब ये struggles होती हैं, does it make you question yourself? क्या तुम एक front लेके आते हो दुनिया के सामने so that shield बन जाता है कि असली रणवीर जो है वो छुपा रहता है and एक persona of रणवीर सिंह बाहर आता है क्या? And रणवीर said no, मैं वही करता हूँ, वही कहता हूँ जो मुझे लगता है. He is not bogged down by societal expectations. पर वहां पे जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो थी करण जौहर की, कि उसका जब मिड लाइफ क्राइसिस हुआ था, ही वाज ऑल अबाउट आउटवर्ड प्रोजेक्शन एंड वो उसके कपड़ों के थ्रू दिख रहा था उस वक्त। एंड आई थिंक दिस इज द करण जौहर वी हैव एसोसिएटेड विथ नाउ, क्योंकि जब ये एपिसोड शुरू हुआ, जैसे कि मैंने कहा, आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि बोरिंग वार्डरोब लग रहा था उसका। एंड ये जो बोरिंग वार्डरोब की मैं बात कर रही हूँ वो पिछले सीजन भी था। But you don't realize he said कि मुझे लगा अपने आप को देख के कि मैं पागल लग रहा हूँ, I'm doing a little too much. And he likes clothes, he likes his designers, he likes his brands, but he doesn't want to become a showpiece. And Ranveer Singh agreed with him, क्योंकि रणवीर सिंह के भी अगर आप पिक्चर्स देखो ना आजकल, ही इज वेरी मोनोक्रोम एंड आई लव द मोनोक्रोम लुक ऑन हिम। आई लाइक कि ये थोड़ा sophisticated, classy लग रहा है आजकल। पर उसने भी यही कहा, he didn't want his fashion game to become his essence, become his identity. and जहां तक लोग उसकी मूवीज एंड एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसकी फैशन की भी उतनी ही बात हो रही थी। तो आई लाइक ही हैज टोन डाउन। एंड वहां पे दीपिका ने एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात की थी। शी सैड कि रणवीर को देख के लोग सोचते हैं ही सुप्रीमली कॉन्फिडेंट, लेकिन ही वाजंट, ही वाज अंडर कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंस वो कपड़ों के थ्रू मेजर अप कर रहा था। सो दैट इज इनसेन, क्योंकि जब रणवीर को देखो, यू थिंक नथिंग कैन टच दिस गाय, यू थिंक ही फ्लाइज हाई, लेकिन ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड सबको वो लो पॉइंट, सबका एक लो पॉइंट आता है। एंड दे टॉक्ड अबाउट दीपिका's लो पॉइंट। आई थिंक ये बेस्ट पार्ट था पूरे एपिसोड का, जहां पे मेंटल हेल्थ की बात हुई है। आई नो मेंटल हेल्थ होल्ड्स अ बिग प्लेस इन माय हार्ट, क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो जब लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सोसाइटी नीड्स टू हियर मोर ऑफ इट। एंड दीपिका से अच्छा कौन? दीपिका इज अ हाईली recognized फेस, हाईली loved फेस, हाईली सक्सेसफुल फेस। तो जब वो अपनी स्ट्रगल्स के ऊपर बात करती है, जो उनके फैंस हैं, जो उनको देख रहे हैं, वो भी शायद सोच पाए, देख पाए कि अपनी लाइफ में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ स्ट्रगल चल रहा है, डू वी नीड टू गेट हेल्प। एंड दीपिका इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर दैट। आई ऑल्सो लव कि करण जौहर ने भी इसके ऊपर बात की है। दे बोथ टॉक्ड अबाउट थेरेपी, they both talked about support system, they both talked about medication, क्योंकि you know what, लोग थेरेपी की बात कर लेते हैं लेकिन मेडिकेशन की बात कम ही करते हैं, क्योंकि आई थिंक जितना स्टिग्मा थेरेपी के साथ है ना, उससे ज्यादा मे बी मेडिकेशन के साथ है। एंड करण एडमिटेड टू टेकिंग मेडिकेशन फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। दीपिका ने कहा है वो पिछले 10 साल से मेडिकेशन ले रही है। आई थिंक ये जो स्टिग्मा है वो कम होगा ये सब सुन के। And this is why I said कि इस episode का emotional quotient बहुत high था. It talked about their lives, yes. It talked about their love, yes. But it talked about topics जैसे image, professional struggles, marriage struggles, and it talked about mental health, obviously.
मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि दीपिका रणवीर ने ये बताया कि कैसे-कैसे जर्नी शुरू हुई थी उसकी थ्रू दिस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जहाँ पे एंग्जायटी और डिप्रेशन उसका बहुत हाई हो गया था। शी सेड कि मेरी लाइफ में सब कुछ था लेकिन तब भी मैं बहुत एम्प्टी थी अंदर एंड शी सेड दैट आई जस्ट डिडंट फील लाइक लिविंग एनीमोर। एंड आई थिंक ये एक मिसनोमर होता है सोसाइटी में, लोगों को लगता है जितना पैसा है आपके पास, फेम है आपके पास, you will not need anything else, you will be happy no matter what. Money doesn't buy happiness, guys. And I love कि दीपिका ने ये बात की थी. She talked about being like a robot essentially, कि मैं इंटरव्यूज कर रही थी, अपना काम कर रही थी, एक फसाड लेके घूमती थी, हंसती थी, खेलती थी, लेकिन अंदर में मैं खोखली थी, there was nothing there. एंड वंस अगेन ये इतना रेजोनेट हुआ ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी ये लाइफ में बहुत किया है मैंने भी लाइफ में। एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एंड आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए दैट नोज द रियल यू, एंड उसके लिए ये रणवीर था। यहाँ पे उन्होंने एक नई गेम भी खेली थी, इम्पोस्टर गेम। बेसिकली ऑल थ्री स्टूड अप, हेडफोन्स लेके खड़े हैं, देयर डांसिंग, टू पीपल हैव द सेम म्यूजिक प्लेइंग, एक बंदे का हेडफोन है जिसपे अलग गाना चल रहा है। यू हैव टू फिगर आउट कि हु इज द इम्पोस्टर। यहाँ पे जो गाने थे इतने डिफरेंट थे, इट वाज प्रीटी फनी। पहला गाना था डिस्को दीवाने आई थिंक, एंड जो गाना उसके साथ साथ चल रहा था वो था कभी खुशी कभी गम, एंड वहां पे करण जौहर वाज द इम्पोस्टर। सेकंड राउंड में रणवीर सिंह वाज द इम्पोस्टर। it wasn't a remarkable game, it wasn't an interesting game, a fun था या आपको उनको उनका dance देखा, उनका interaction देखा, they let loose a little bit, so that was fun, but that was about it. लेकिन once again, that body, man, Deepika is so beautiful. It's not fair, guys, it's not fair. फिर होता है रैपिड फायर राउंड गाइस। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ द हेल रणवीर सिंह लॉस्ट। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस थी वो दीपिका की ब्यूटी में इतनी खोगी, उसकी आंखों में इतनी खोगी कि उन्होंने दीपिका को विन दे दिया। एंड इट वाजंट इवन अ क्लोज विन गाइस, शी वन बाय अ लैंडस्लाइड लाइक 73% to 27। किस दुनिया में रणवीर सिंह को 27% मिलेगा रैपिड फायर में? मुझे रणवीर सिंह के आंसर्स ज्यादा फन लगे थे, ज्यादा मस्ती वाले लगे थे, ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू लगे थे। दीपिका इज अ लिटिल बिट मोर कॉशियस देन रणवीर, एंड ये गलत बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो स्पाइसीपन तो रणवीर ने ही दिया था ना। Oh well guys, what can we do? ऑडियंस ऑडियंस होती है। पर ट्रूथफुली अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस इतने स्पाइसी भी नहीं थे, क्वेश्चंस इतने फन भी नहीं थे, तो आंसर्स दोनों के इतने माइंड ब्लोइंग भी नहीं थे। ओके, लेट्स गेट रियल। एक रेवलेशन जो इस रैपिड फायर में हुई थी वाज दैट रणवीर सिंह एक स्टेज लाइक एक प्ले पे थे जहां पे रिचा चड्डा भी थी, सो दैट वाज प्रीटी कूल। एंड उसने कहा कि वहां पे मेरी पैंट उतारी गई थी, नॉट लिटरली, बट जो वहां पे डायरेक्टर था उन्होंने रणवीर को कहा कि यू सक, you're not gonna make it, ऐसी वाली एक्टिंग से बॉलीवुड में चलेगी। And I guess that director is looking at Ranveer Singh now and thinking, damn, मेरी वजह से रणवीर सिंह बॉलीवुड में पहुंचा हुआ है। So that was pretty fun. And body goals की बात आती है, then he looked at his wife and was like, this is the goal right here, guys. These proportions. He is smitten. He is smitten. How many times have I said that? He is smitten. And I don't blame him. She's stunning. जहां तक thirst trap की photos है, he was like, look at me guys, and I have to agree. Does anyone remember that nude photo shoot he had? Like, oh my god. He also said कि Deepika looks the best with Shahrukh. अगर आप पठान देखें, जवान देखें, तो I guess a lot of people agree. यहाँ पे रणवीर को AI डिस्क्रिप्शन भी देनी थी आलिया एंड दीपिका के लिए उसने कहा नो AI can ever replicate her, लेकिन फाइन मैं बता देता हूँ, she is sunshine, she's Tweety Bird, she's Pebbles Flintstone. That was funny. And then आलिया के लिए उसने कहा she's Casper the ghost, she's a white cat, and she's Sakhi. Go-to dance move is the hip thrust baby, and then Dola Re Dola remake with Ranveer. गाइस इस दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि करण जौहर वांटेड टू मेक द मूवी संगम, रणवीर और दीपिका के साथ, एंड हु नोस, क्या पता we'll get lucky and one day संगम 2 comes.
There's a lot of history there. There's a lot of good looks there. There's a lot of chemistry there. And there's a lot of acting there. Deepika's confidence these days is sky high. Rapid fire के दौरान उसने कहा था कि लोगों का misconception है that I'm stoppable. I was like, damn girl, you get it. She also said कि no one has my sauce. मेरा sports background, मेरी upbringing जो है, no one has that. केमिस्ट्री की बात करें तो उसने यहाँ शाहरुख का नाम लिया, रणवीर का नाम लिया, रणबीर का नाम लिया, इरफान का नाम लिया. आई वाज सो हैप्पी टू हियर इरफान्स नेम. एंड जो फाइटर मूवी आ रही है ऋतिक के साथ, शी वांट्स पीपल टू नोटिस दैट केमिस्ट्री एज वेल. एंड गाइस, मैं यहाँ कह रही थी कि दीपिका इज सो अनफेयर, शी इज लाइक सो ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे ऋतिक, वो कौन सा फेयर है लोगों के लिए? ही इज गॉर्जियस हिमसेल्फ. सो कैन यू इमेजिन दीपिका एंड ऋतिक कमिंग टुगेदर? It's sickening in a good way, in a good way, in a good way. Once again, rapid fire में दीपिका ने यही दोहराया है कि रणवीर amazing husband है, रणवीर emotionally available है, रणवीर wears his heart on his sleeve. Basically everything we know about him, she said. And उसने ये भी कहा है कि she is married to Rocky Randhawa. Basically उसने ये कहा है कि कौन सी लड़की रॉकी रंधावा से शादी नहीं करना चाहेगी या डेट नहीं करना चाहेगी. he's a lover and he's emotional. और क्या चाहिए लाइफ में? लवी डवी एपिसोड था, फैमिली बॉन्ड फिल्ड एपिसोड था, मिर्च मसाला कम था. आप जो कॉफी विद करण से एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं था ये. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 8 में ऐसे एपिसोड्स नहीं आएंगे जहां पे आपको जो गॉसिप चाहिए, आपको जो कैरीनेस चाहिए, आपको जो ड्रामा चाहिए, वो नहीं होगा. लेकिन जैसे दीपिका ने कहा, शी इज अफ्रेड ऑफ द रैपिड फायर, दे आर अफ्रेड ऑफ द शो, क्योंकि कभी कुछ नहीं पता कौन किससे अफेंड हो जाए. जैसे कि करण ने कहा, people are hounding the keyboards these days to get offended about something. Luckily for रणवीर एंड दीपिका, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑफेंसिव नहीं किया है. अगर किसी को कुछ बुरा लगा होगा, it is this, कि how is this couple so in love with each other and why don't we have that kind of love in our life. मेरे हस्बैंड मेरे साथ ये शो नहीं देख रहे थे, लेकिन I turned to him and I said कि I'm sickened right now, and he's like, what's wrong? I was like, he lives for her, he breathes for her, ये साफ दिखता है. And I turned to him and I was like, are you like that for me? Early in their relationship, guys. अभी थोड़ा टाइम हो गया है, एंड जैसे कि मैंने कहा, मुझे ये रणवीर और दीपिका वाला लव चाहिए दोबारा मेरी लाइफ में. तो जैसे कि उन्होंने कहा, मैरिज टेक्स वर्क, तो मैं जरूर इस पे काम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी दीपिका की तरह अपने हस्बैंड को देखना है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड रणवीर की तरह मुझे देखें. हालांकि ना वो रणवीर है और ना मैं दीपिका हूँ, लेकिन फिर भी we all deserve love, guys. That's it from me, guys. I'll see you next week with another review. लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है. आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपको रणवीर सिंह एंड दीपिका पाडुकोण का प्यार कैसा लगा? आपको ये इमोशनली मैच्योर कन्वर्सेशन कैसी लगी? Or do you want to do away with all that and do you just want the goss? Let me know, guys. I'll see you later. Bye.